my business. I have a job. I have been tasked by my government, and I'll do according to my light. And even my government has not ordered me कि मैं कैसे distribute करूं. They have left it to my discretion. I'm a general. I've been given broad. I was very young at that time, but I was quite heady. And I said कि आपने ये जो दिया है ये हमारी उसके लिए नहीं है, आपकी अपना इसके अंदर इंटरेस्ट है और हम तो पहले भी कर रहे थे इसके लिए। तो जब वो उसने ये कहा तो मैंने कहा कि लुक, आई हैव टोल्ड यू आई टेक माय इंस्ट्रक्शन फ्रॉम माय गवर्नमेंट एंड माय गवर्नमेंट हैज नॉट डन इट। इफ योर गवर्नमेंट सेज सो, आई सेड इन दैट केस आई वुड रादर रिजाइन देन टेक द डिक्टेशन इनडायरेक्टली फ्रॉम यू। एंड आई गॉट एंड आई देन एज सून एज ही लेफ्ट तो आई कॉल्ड द स्टेशन चीफ हियर, वो वहाँ मौजूद ही था और हाँ CIA का। He apologized कि जनरल don't be upset, ये ऐसे ही होते हैं senators, congressmen. I said कि next time don't bring such people to my office. I will hate to meet them. ये एक ऐसा रिलेशनशिप था। जब वो मुजाहिदीन से मिलते थे मेरे 2 आदमी मौजूद होते थे and they would record the minutes. आप देख लीजिए रिकॉर्ड के अंदर पड़ा हुआ है। जो सर फिर क्या हुआ कि 2002 और फिर उसके नहीं 2002 नहीं, I saw the change in my own period tenure in the ISI. फिर वही रॉबर्ट ओकले जो था वुड वॉक इन टू बेनजीर ऑफिस एट एनी टाइम ही वांटेड। आई मीन लीव अलोन मी वेयर आई यूज्ड टू मेक हिम वेट फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट एंड नेवर सी इन माय ऑफिस बट गो इन टू दी सिटिंग रूम जहां मैंने एक वो गेस्ट रूम बनाया हुआ था, वहां मिलता था उसको एंड ही वुड वेट देयर एंड ही वुड पेंडर टू मी एंड एलोजाइज मी एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई सॉ हिम एज सून एज बेनजीर केम, because I think she thought that she was beholden to them because they had cleared the way for her to come into power, which was wrong. Sheet of paper वो जो मौसूल हुआ था गुलाम साहब खान साहब को, हाँ प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश से, हाँ जी, कि रास्ता हमार किया जाए। नहीं वो मुझे नहीं पता, गौहर साहब ने जो है कुछ किताब में कहीं मेंशन किया हुआ है। हाँ तो वो जो है वो तो बुश नहीं था उस वक्त, तो रेगन, हाँ वो चलती रहती चीजें। मेरा मतलब है कि दिस इज वन बिलीव का वो आए तो उसके ऊपर ज्यादा प्रोब की जरूरत है कि कैसे हुआ। ये प्रेसिडेंट रेगन का था वो, रेगन। अच्छा मैं उसको अच्छा आपने उस वक्त से देखना ये 89 से तो एक ऐसा रिलेशनशिप था हमारा जिसके अंदर वी वर द पाकिस्तान वाज द सुपीरियर पार्टी, वी हैड द अपर हैंड, we would dictate, so much so कि CIA chief जो जहाँ था, he was a very competent man, he is still a friend of mine, अब he is out of service long time back। तो वो कहता था कि जनरल I am simply your quartermaster, you don't take me into confidence on things। I said look, jokingly, and I said कि that's right, I am the general, you are a quartermaster, you are the logistic provider, your job is not beyond that, I have to decide। I have to fight and win this war, inshallah. And we won. We won because we never allowed them to come. We never allowed them to interfere. We knew that the British intelligence, especially Nicholas Barrington, Sir Nicholas Barrington, who was one of the last guards of imperialism in Pakistan. He spent 8 years or more than that, 8 years. And even after retiring, he continued to stay here. And he had a hand in creating Taliban. Taliban were not a creation. I wouldn't say that. I wouldn't blame them because in Afghanistan you can't create anything. Whether in grooming and supporting. नहीं वो मतलब है कि he was encouraging the royalists कि इनको financial support करो और ये करो वो करो, क्योंकि वो royalist के साथ था ना, ज़ाहिर शाह के साथ वो उनका आपस में nexus पुराना चला आ रहा था because that will give them access in Afghanistan and a foothold into the Afghan society. It's not necessary कि आप get a foothold onto the government. You have to get foothold in the society as well. तो वो ज़ाहिर शाह को पाल रहे थे वहाँ बैठे हुए, इटली में बैठा हुआ था ज़ाहिर शाह और उसको बीच में लेके आ जाते थे। तो he was all the time scheming। उसने एक किताब बनाई हुई थी Who's Who in Pakistan और सारे एम्बेसडर्स को वो देता था and he would bring them as if the British was अभी तक वो एम्पायर तो दफा हो गई थी लेकिन ये अभी तक बैठे हुए थे उसके एम्पायर के चमचे। तो ये सारी बात जो है वो चल रही थी। रिक्रूट कर रही है खुद पाकिस्तान में अपने एजेंट्स। We never allowed them to recruit। तो अब तो करते होंगे, उस वक्त करते थे, उस वक्त नहीं करते थे।
हमें ये पता है कि एक दफ़ा, मैं आपको नाम भी बता दूं, नाउ दैट यू आर आस्किंग मी, कि वी केम टू नो, वी गॉट एन एजेंट जो कि CIA उसके लिए, मुसाड के लिए काम कर रहा था, एंड वी केम टू नो कि अमेरिकन डिफेंस अटैची हेयर, डिफेंस का अटैची तो नहीं था वो, गालिबन डेप्यूटी डिफेंस अटैची था, आई फॉरगेट नाउ, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. हिज नेम वाज कर्नल डॉकिन, and Colonel Dokin was working, American attache working for Mossad. Can you beat it? उसके अंदर वो लगे हुए थे, काम कर रहे थे, उसको उन्होंने रिक्रूट किया हुआ था एजेंट को. वी कॉट देम एंड कर्नल डोकिन का नेम केम अप, सो आई कॉल्ड द CIA चीफ, बिकॉज हमारे साथ तो रिलेशनशिप इस किस्म थे. एंड ही वॉज अपोलोजेटिक टू नो एंड ही सेड कि आई हैव नो आइडिया व्हाट द हेल दिस मैन इज डूइंग, बिकॉज वो दूसरे लेवल से आते हैं. बट श्योर इनफ विद इन ए वीक डोकन वाज गॉन फ्रॉम हेयर. वी डिडंट वांट टू पिक अप कजल विद इट कि उसको ऑफिशियल कर दें, ये करें, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है, दफा हो गया, चला गया यहाँ से. बट वी बिकेम वेरी कॉशियस. इट्स बिटवीन अमेरिका एंड इजराइल आपस में सॉर्ट ऑफ. हाँ, तो उनका अपना. लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि दे वर ट्राइंग टू क्रिएट कॉन्टेक्ट विद द अफगान कमांडर्स, नॉट द मुजाहिदीन लीडर्स. जो कुछ तो जाते थे, जो ये लिबरल टाइप थे, जो रॉयलिस्ट एंड लिबरल, वो उनके साथ मिलते रहते थे, हमको कहते थे. लेकिन जो रियल हार्डकोर मुजाहिदीन थे, हम उनके साथ मिलने नहीं देते थे. और हमारा एक्सक्यूज ये होता था कि इट विल अननेसेसरी प्लेस यू इन सिक्योरिटी रिस्क अगर आपको दे दो. ट्राइबल एरियाज में हमारे नहीं जा सकते थे. मसलन दे हैड ए काउंसलेट इन पिशावर, बट बियॉन्ड दैट दे वुड नॉट गो एनीवेयर. तो ये हम उनकी मूवमेंट को भी चेक करते थे. तो और जहां तक रिक्रूटमेंट का ताल्लुक है, करते होंगे कि तो हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी हमने करता है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं था और हमें पता नहीं था. और अगर जैसे कि मैंने कहा, डोकन के किस्से में जब हमें पता चला तो हमने वी केम डाउन हार्ड अपॉन देम एंड दे इमीडिएटली रिकॉइल्ड, और माफी भी मांगी उसके लिए उन्होंने. तो ये थी हमारी उनकी रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप. अब क्या हो रहा है? अब जनाब उन्होंने कुछ बातें, मैं because I think they are still highly confidential, not in my tenure, but even now I have knowledge of it, but I will not share it publicly. लेकिन बहुत ज्यादा उनको एक्सेस दी गई है, उनको बहुत इंग्रेस दी गई है इनटू आवर डिपार्टमेंट. पहले वो डील करते थे फॉरेन ऑफिस के साथ, ISI के साथ, एंड ए लिटिल बिट विद GHQ. टुडे दे आर इनटू एवरी डिपार्टमेंट, और उन्होंने अपने पूरा नेटवर्क बना लिया हुआ है. दूसरा यह है कि राइट अंडर आवर आइज दे आर रिक्रूटिंग नॉट ओनली द अफगान नेशनल बट पाकिस्तानी नेशनल, पेइंग देम डायरेक्टली, एंड वी डू नॉट नो हु दोज गाइज आर, एंड मेनी ऑफ देम फ्रॉम बलोचिस्तान. सो आई थिंक दे हैव बीन एबल टू एक्सपैंड देयर नेटवर्क हियर. उस वक्त अगर वो पाकिस्तान का सपोर्टिव था वो नेटवर्क, जो भी उन्होंने यहां बनाया,